Hi friends, so I'm back with another video. This is also a concept in economics, the monetary policy. So I hope you like my last content. Uh, Please like and share my contents amongst your friends so that it can reach to maximum people. And I can also get encouragement to post similar contents in the future. Uh, and if you haven't checked out my last video, I'll put the link in the description. You can check from there. Getting started with the monetary policy. So it is basically monetary policy is related to controlling inflation in India. So can be of two types basically, expansionary, contractionary. Okay. So expansionary method can understand the when the economy is in contracted position is undergoing slow growth or is in recession, there is a need for demand, spiriting demand. Then this policy is being resorted to where the rate cuts and other things are happening to instigate public demand. And contractionary, like when there is galloping inflation or hyperinflation, then to stabilize the economy, contractionary policy is being resorted to where the rates are high to low down the liquidity in the economy. So this policy, monetary policy, is framed by a monetary policy committee. This was constituted after a report from Urjit Patel committee. So it was formed in 2016. So it has six members. Three are from RBI governor, the deputy governor, and one senior member from RBI nominated by them. And three members are nominated by the Minister of Finance, that is the government of India. And the quorum for the meetings to happen is four members. 26, four members should be there. They meet quarterly in a year, that is four times a year they meet, and they decide on the policies. Okay. So currently the target for India's inflation is 2 to 6%. That is 4 plus minus 2%. The target is being fixed by the government of India in consultation with RBI. So now let's look into the monetary policy. So it has two broad components: quantitative uh, tools and qualitative tools. So quantitative tools are also called as LAF, liquidity adjustment frameworks. Okay. So we have a few of them here, like the repo rate, uh, reverse repo rate, SLR, CRR, OML. So we understand them on the one. So repo rate मतलब क्या होता है? Like say a bank needs a loan, ठीक है, on a short term basis. So it will go to RBI, approach RBI, the central bank, and RBI will lend its loan at a rate, ठीक है. और मान लीजिए the rate is something around 6%. So the bank will take the money and it has to repay it in a certain amount of time. अगर नहीं किया उसके बाद तो इंटरेस्ट और रेट और keeps on increase, ठीक, और फाइन वैन भी कुछ देना पड़ता है वो थोड़ी. तो मान लीजिए द रेट इज 6% और ड्यूरिंग contractionary monetary policy the RBI raises the repo rate to 6.2%, 6.25%, say 6% से 6.25% रेज करते हैं. तो अभी बैंक्स क्या करेंगे? दे विल टेक लेसर लोन्स फ्रॉम आरबीआई. लेसर लोन्स लेंगे तो पब्लिक को लोन कम दे पाएंगे, ठीक है. तो ऐसे करके लिक्विडिटी जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी. अगर ऐसा तब किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन मॉनेटरी पॉलिसी when there is already a high level of inflation in the economy or when we try to stabilize the financial system, ठीक है. और अगर रेट को कम किया जाए, सोचिए 6% है उसको 5.8 या 5.9 किया गया, तब क्या करेंगे? तो बैंक्स विल टेक मोर लोन्स, ठीक है. और वो ज्यादा लोन लेंगे तो वो ज्यादा लोन दे पाएंगे टू द पब्लिक कंज्यूमर्स. तो ये तब होता है जब there needs to be a demand created in the economy. Economy is already in recession और slow growth हो रहा है, तो तब इसको किया जाता है इस पार्ट ऑफ एक्सपेंशन इकोनॉमी. और रिवर्स रेपो रेट क्या था? उल्टा होता है. लाइक ये बैंक्स को इंसेंटिव दिया जाता है आरबीआई की तरफ से कि अगर आपके पास एनी एक्सेस फंड, यू कैन डिपॉजिट दैट विद अस, ठीक है. आप हमारे साथ डिपॉजिट कर सकते हो, उसके लिए आपको इंटरेस्ट मिलेगा. द बैंक्स विल बी गिवन इंटरेस्ट. लेकिन रिवर्स रेपो रेट और ऑलवेज लेसर देन रेपो रेट. सोचिए अगर रिवर्स रेपो रेट ज्यादा हो गया रेपो रेट से तो आरबीआई को नुकसान हो जाएगा. आरबीआई ये नेगेटिव मतलब ये डिफरेंस ही आरबीआई का इनकम है. रिपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में जो डिफरेंस हो रहा है, जो मार्जिन होती है डिफरेंस, वही आरबीआई का इनकम हो जाता है, रेवेन्यू है, ठीक है. तो अगर that also goes same like the reported in case of contractionary and expansionary monetary policy जैसा होता है. So जी expansionary में क्या होगा? आपको
फैसिलिटेट करना। ठीक है। अगर आप मतलब अगर सोचिए अगर बैंक्स अपने फंड्स आरबीआई के पास ज्यादा रख देगा तो उनके पास कम अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आरबीआई रिवर्स रेपो रेट ज्यादा दे रही है मतलब वो इंसेंटिवाइज करे कि बैंक्स को कि आप आपके आपके फंड्स हमें हमारे पास रखिए, आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। तो बैंक्स क्या करेंगे, बैंक्स विल बी इंसेंटिवाइज टू कीप द फंड्स विद आरबीआई रादर देन लेंडिंग टू द पब्लिक। ठीक है। तो क्या होगा, पब्लिक के पास लोन्स कम मिलेंगे तो जो लिक्विडिटी है, जो मनी है, जो करेंसी है मार्केट में, उसकी फ्लो कम हो जाएगी। ठीक है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। रेपो रेट में हमने क्या देखा था, जब रेट राइज हो रहा है तब इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है। और यहाँ पे भी जब रेट राइज हो रहा है तो भी इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। बट दोनों के काम अलग है, दोनों के मोड ऑफ फंक्शनिंग अलग है, लेकिन दोनों अगर राइज हो रहा है तो इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। और अगर रेट को कम कर दिया मतलब क्या, रेट को अगर कम कर दिया, रिवर्स रेपो रेट को आरआरआर को कम कर दिया, तो बैंक्स को आरबीआई कह रही है कि आप हमारे पास फंड्स रखोगे तो आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, एज अगेंस्ट आप अगर लेंड करते हो तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट आपको आपको फायदा होगा। इफ यू लेंड मोर टू द पीपल rather than parking your funds with us at RBI, you will get more benefit. So banks will be incentivized to extend more loans to the people. ठीक है। तो दैट इज द पार्ट ऑफ एक्सपेंशन। एसएलआर क्या होता है कि बैंक्स का कुछ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, कुछ अमाउंट ऑफ कैपिटल एसेट्स, दे एसेट्स दे हैव टू कीप विद देमसेल्व्स एज रिजर्व। तो ये आरबीआई के पास नहीं होगा, ये उनके पास ही रखा जाएगा। अपने बैंक्स बैंक्स अपने डिपॉजिट्स के कुछ हिस्से एज रिजर्व्स उनके पास ही रखेंगे। अगर शॉर्टफॉल के केस में दिस इज केप्ट एज सेफ्टी। मान लीजिए सारे लोग आ गए एक ही दिन में आपसे पैसा वापस ले लें, आपके पास तब फंड्स नहीं है, आपने लोन दे दिए दूसरे लोगों को, बस तो शॉर्टेज ऑफ फंड्स है, तब दिस कैन बी वन ऑफ द वेज ऑफ रेस्क्यू। आप वो डिपॉजिट्स देके उनको उनकी जो डिमांड है वो सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है। सीआरआर उल्टा चीज है, सीआरआर इज केप्ट विद द आरबीआई। आप बैंक्स अपने एसेट्स आरबीआई के पास रखते हैं, कैश रिजर्व रेशियो अपना लिक्विड एसेट्स, ताकि वो ज्यादा लोन ना देते। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द एक्सपेंचुअल कॉन्ट्रेक्शन पॉलिसी। अगर मान लीजिए सीआरआर को बढ़ा दिया है, तो मतलब बैंक्स को अपने एसेट्स के ज्यादा हिस्से, हायर अमाउंट ऑफ देयर एसेट्स विल बी केप्ट विद आरबीआई एज रिजर्व। तो उसके उनके पास लोन देने के लिए पब्लिक को कम रिसोर्सेज बचेंगे। दैट विल बी अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है। और अगर स्कैनर को कम किया गया मतलब ज्यादा हिस्से बैंक्स अपने पास रख सकते हैं और कम हिस्से आरबीआई के पास रखने पड़ेंगे, तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी। अपने पास ज्यादा रिसोर्सेज होंगे तो दे कैन लेंड टू द पीपल। ठीक है। और ओएमओ होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। उसमें आरबीआई क्या करती है, सेल करती है और बाई करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, जीसेक्स को। ठीक है। मतलब क्या, अगर मान लीजिए मार्केट में रुपी का बहुत सप्लाई है, अगर सप्लाई ज्यादा है तो मतलब क्या, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है। और तो क्या करेगा आरबीआई इन दैट केस, इट विल ट्राई टू सक आउट द एक्सेस मनी। सक आउट कैसे करेगा, वो पब्लिक को बेच देगा मार्केट में, वो जीसेक्स छोड़ देगा, जीसेक्स को छोड़ देगा और उसके फ्री में तो नहीं छोड़ेगा, इट विल चार्ज मनी फ्रॉम द पीपल। तो पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक जीसेक्स खरीदेगी, बैंक्स जो है जीसेक्स खरीदेंगे और इन रिटर्न पैसा देंगे, जो उनके पास जो लिक्विड करेंसी है, जो पैसा है, वो आरबीआई के पास देखते हैं। इन दिस वे आरबीआई सक्स आउट द एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट। ठीक है। और जो कि जीसेक्स थोड़े लेस लिक्विड होते हैं देन द करेंसी, तो इट विल हैव टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। दूसरा अदर साइड ऑफ द कॉइन क्या है, इफ दे वांट टू इनिशिएट और इन्फ्लुएंस डिमांड, तब क्या करेंगे, दे विल बाई द जीसेक्स। वो बैंक से पब्लिक से वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाई करेंगे, और बाई भी फ्री में नहीं करेंगे, आरबीआई विल पे देम मनी, आरबीआई तब उनको पैसा देगी। तो तब मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, आरबीआई विल टेक टेक बैक द जीसेक्स, सक आउट द जीसेक्स फ्रॉम मार्केट एंड विल पे बैक विद मनी, करेंसी। तो ये लिक्विडिटी को थोड़ा एनहांस करेंगे ना। अपना लिस्ट हो गया था क्वालिटेटिव फैक्टर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स कैसे हैं, मॉरल सुएशन मतलब क्या, आरबीआई जो गाइडलाइंस जो नॉर्म्स बैंक्स को देती है, अब कुछ कुछ चीजें होती है जो बैंक्स के ऊपर वॉलंटरी होती है एग्जीक्यूशन में। ठीक है, एनफोर्समेंट में। ठीक है। तो कभी कभी कॉम्प्लायंस में वो लोग थोड़ा करते हैं, वो उनके ऊपर जो होता है, तो आरबीआई इंश्योर करेगी कि ये कॉम्प्लायंस
को अचीव करने के लिए, नियरली 100%। तो उसके लिए वो क्या करेगी, रिपीटेड कंसल्टेशन करेगी विद द बैंक्स, मीटिंग्स करेगी, फॉलो अप करेगी, कंप्लायंस लेगी कि आप करिए, ट्राई टू कन्विंस द बैंक्स कि आप करिए। और अगर नहीं होता तो दे पनिश पनिश देम ऑल्सो इफ दे क्रेडिट रैशनिंग। वो आरबीआई के हैज द पावर टू लिमिट द क्रेडिट रैशनिंग, क्रेडिट अवेलेबल टू फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। जैसे वो बोल देगी, जैसे पीएसएल नॉर्म्स है कि बैंक्स को अपने एएनबीसी का, एडजस्टेड नेट बैंकिंग कैपिटल का कुछ हिस्सा कुछ कुछ सेक्टर्स को लोन में देना ही पड़ेगा। जैसे 40% इज द केस फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स टू बी गिवन टू पीएसएल सेक्टर्स, जो कि आते हैं आपके एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्सेज, ऐसे करके कुछ कुछ सेक्टर्स को आपको देना पड़ेगा लोन। तो ऐसे आरबीआई मैंडेट कर सकती है कि आपको कुछ और सेक्टर्स में भी इतने परसेंट लोन देने एक्सटेंड करने पड़ेंगे। बाकी जो आपके पास बच रहा है वो आप किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन कुछ परसेंट आरबीआई फिक्स कर देगी। ऐसे ऐसे कुछ पॉलिसी आरबीआई कैन ब्रिंग। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ क्रेडिट rationing और कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। तो उसमें आरबीआई कैन help to generate demand, simulate demand by altering the amount of EMI rates and all these things, ताकि people are encouraged to buy more, and ऐसे करके it can influence the demand in the market. ठीक है। And other way that is not mentioned here is by creating awareness, like आरबीआई ad वगैरह कर सकती है, public campaigning कर सकती है to spread awareness amongst the general people as well as the banks। ठीक है, जो आरबीआई करती भी है करती है। So it is a part of qualitative measure। So I think I have helped you understand quite a few basics of monetary policy और क्या क्या components है इसमें, कैसे कैसे टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो आई होप इट वाज यूजफुल फॉर यू गाइस। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इफ यू वांट एनी अदर वीडियो फ्रॉम मी यू कैन इन द कमेंट्स। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो यू कैन टेल योर मेल आईडी इन द कमेंट्स, आई कैन सेंड यू द पीडीएफ। अगेन show the drive link, वहां से you can get the PDF of this। Okay, तो आज के लिए इतना ही। We will meet shortly with another video। Okay, till then bye। जय हिंद। थैंक यू।